All right, Vaishnavi, tell me. So I had cleared the prelims in 2022 attempt. Please start again. Please start Okay, again. Yeah. I had cleared the This prelims in was your my fifth third. attempt. Your Yes, 2024, 2023. अभी four हुआ. 2024 was your fifth attempt. yes, sir. Okay. And 2022, which was my third attempt, in Mm-hmm. that I had cleared the prelims. Mm-hmm. And in that attempt, I wrote the mains and missed the interview cutoff by 20 marks. Okay. So because of low score in my optional, GS score was good. It was around 430. Okay. And then in 2023 there was a different Hmm. pattern of prelims, and so then I couldn't clear the prelims in 2023, and again in 2024 I was scoring 92 to 90 marks, like from different keys, but still I couldn't clear. Hmm. So I don't know, maybe the cutoff would be around Hmm. 95. Probably. Hmm. Yeah, so I have left with one more attempt I'm Hmm. having. Hmm. So what should be my approach, like to give the state PCS exam this year or to give the How attempt in old are you? 2020? So 26. You are 26. Yeah. So age is certainly in your favor, Yeah, right? yeah. You can Mm-hmm. write up to 32 years. So age is not an issue. Attempts Yeah. certainly are your constraint. And And how moreover, sir, I think the prelims is the hindrance which is ruining my attempts. Because in my first mains itself, I scored the 722 marks. hmm, hmm, hmm. So, Uh, yeah, how important is it for you to have a job right now? I mean, are your like is your financial situation very precarious? Although you need a job as soon as possible, or can you give one more attempt without a job, full-time preparation, and then uh, be done with it? Like it's just one attempt left. So how badly do you need a job right now? so psychologically, I am like very much depressed. So, something to boost my confidence and to gain something, like it's like, repeated failures at prelims. So, psychologically, I think I need it most, because it's So very. you don't need it like for financial security. It's more of the confidence thing that you. Yeah, like Hmm? since I'm preparing fully from 2021, or from mid 2020, so it's very, sitting Boring whole day at. also now. Yeah. Mm, So although it's not like that I have prepared everything and I don't need time now, mm, but still it's very depressing to, mm, those things keep coming in mind, like mm, I'm failing, I'm not able to mm, clear. So mm. some kind of confidence is that I need by so that's why I'm thinking to whether to get a job first by clearing some state pieces, etc. Um, See, clearing would not be much of a big issue because you're already doing pretty well in UPSC mains. So clearing would not be that big of a challenge, but the challenge in your case would be the uh, touch that you will lose. Once you clear state PCS, you'll go for Yes, sir. training, you'll go for probation. All of that is going to cost you at least 3 years, if not more. 2 years probation and Mm-hmm. probably 1 year training and even 1 year of attempts, like Yes, preparation sir. and attempt. 4 years. Yes, sir. So for 4 years, then you will not be, very rigorously preparing for UPSC. Maybe here and there, some time you may devote, but that will not be serious, and that certainly will not be enough for you to give an attempt of UPSC, right? Okay. That is one way to look at it. So age is in your favor. That's Mm. why you can still afford to give 4 years to any other venture, be it state PSC, be it any other exam, maybe some government exams also, CAPF also, you would be eligible as of now. Okay. Okay, so Mm-hmm. you would be eligible to write other exams. You may be clearing them also, and you also have that age factor that at max, like you can still afford to have those 3 4 years
to be away from UPSC before you start rigorous enough preparation. Yes, sir. But the biggest risk is this only. Once you get selected, once you get a job, because you've already saturated with UPSC preparation, it will be a very fresh, new thing, exciting thing for you. You might not want to come back to UPSC. And that Okay. one attempt which you have in your hand right now, Yes, sir. eventually you may lose the tempo. You may lose the motivation to go through that kind of rigor once again. Okay. So right now you are hungry for it. Do you get it? I Yes, mean, sir. that's the main point. Right now you are hungry for it, and it's just one attempt that is left. So the choice is Yes, sir. whether you give one more year full-time preparation to UPSC in a very disciplined and dedicated way and Mm-hmm. be done with it. Whatever is the result, irrespective of the result, if you are giving your 100%, you really will not care about the result, because once we have given our 100%, we are satisfied that we have done our best. Now, whatever happens, that's destiny. Okay. Okay. Mm-hmm. Until we have given our 100%, we always feel I could have done this, I could have done that. Right. Yes, sir. And right now you have that hunger. How do you feel like that's now an assessment which you have to make? How much do you feel you'll have that hunger after 3-4 years to again get into this UPSC ka rut? Okay. It's very challenging actually. Okay, sir. So, don't we get like some leave or anything in state pieces that we don't join after clearing? देखो अगर क्लियर करके डू यू अंडरस्टैंड हिंदी हाँ, क्वेश्चन? yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सो क्लियर करके अगर लीव ले भी लिया तो फिर फायदा Yes, क्या हुआ? बिकॉज तुमको sir. तो चेंज चाहिए ना. आवाज ब्रेक हो रही थी सर. I'm I'm saying even if you Mm-hmm. clear and if Yes, you sir. take leave, if you take extension, if you don't join, for example, you are just Yes, doing sir. it for job Yes. security, but you Yes, don't sir. want a job right now. You want to change your Mm-hmm. timetable, your schedule, your monotony. You want to break the monotony. Yeah, and Taking an extension will not break that monotony, na? yes, sir, but it will give me that psychological security. Okay, that something I'm having in my hand, like some job I am having. That you can, I mean, again that's a call which you will have to take. ये दोनों तरफ हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव इसको जी. अगर आप देखो कि if you are giving UPSC next year, हम्म. you are damn sure कि this is your last attempt. अब जो हम्म. होगा, अब जो होगा वो फाइनल है बस. इसके बाद मतलब जी. या तो आर है या पार है. फिर then UPSC जी. will जी. not be a problem. Then you can be 100% focused on whatever next you do. Okay. यस सर. हाँ, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स जिसमें एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी. अभी जैसे 26 हो, शायद CAPF का 27 होता है या क्या होता है, if I'm not wrong. तो अगर वो एलिजिबिलिटी में फंस रही हो बाकी एग्जाम्स में, तब तो वो जी. एग्जाम की सोच सकती हो कि अगर हाथ ओके. पैर मारने हैं इधर उधर, तो बाद में ये ना हो जाए कि यूपीएससी के चक्कर में बाकी एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी छूट गई. स्टेट पीएससी में तो एलिजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लिमिट की तो, नहीं सर. है ना. बट बाकी जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें जी. एलिजिबिलिटी जी. का इश्यू होता है. तो इफ यू आर सीकिंग अ ब्रेक एंड इफ यू वांट अ सिक्योर जॉब ऑल्सो जस्ट एज अ सेकेंड ऑप्शन. आज ही मेरी बात हो रही थी एक और स्टूडेंट से, CAPF क्लियर किया, इसी साल रिजल्ट आया, आई थिंक जनवरी में रिजल्ट आता है, इस अभी रिकमेंड हुई है. और नाउ शी वाज जी. आस्किंग कि क्या करूं अभी, ये दूं क्या नहीं दूं आगे यूपीएससी. सिमिलर सिचुएशन लाइक योर्स ओनली, ओके. बट ओके. शी हैज अ जॉब इन हैंड. और अभी उसने एक्सटेंशन लिया हुआ है. एक्सटेंशन कह रही थी शायद 3 बार ले सकते हैं, 1 साल का एक बार में मिलता है, मतलब बैच होता है. एक बैच अभी छोड़ छोड़ दिया जी. जी. जनवरी वाला, फिर अगले साल, फिर उसके बाद अब उसका भी लास्ट, अब उसका है लास्ट ईयर. उसका तो 32 की अभी हो जाएगी, या जी. अटेम्प्ट जी. कुछ बाकी, कुछ तो ऐसे है उसका. शायद अटेम्प्ट का ही होगा. अभी एग्जाम क्लियर हुआ CAPF का, तो शुड नॉट बी टू, मतलब एज वाला इशू नहीं होगा, अटेम्प्ट का जी. इशू है उसका. सो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि देखो ये दोनों तरफ हो सकता है. इफ यू वांट कि मैंने यूपीएससी में
एक बेस्ट अटेम्प्ट अपना देना है, बट देन यू शुड हैव द मेंटल फोर्टिट्यूड कि तुम अपने आप को दबा नहीं रही हो कि मेरा अभी तक नहीं हुआ, मेरा अभी तक नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं होगा। उस माइंडसेट से क्लियर नहीं होता यूपीएससी। ये यू हैव फीलिंग ही टू बी अभी वेरी बहुत अग्रेसिव ज्यादा, अबाउट इट। हाँ ये फीलिंग अभी बहुत ज्यादा आ रही है कि हाँ, अगर बिल्कुल अगर ये फीलिंग अभी आ रही है, तो जो तुम ये सोच रही हो कि बाकी एग्जाम्स मैं दे लेती हूँ, लेट मी जस्ट प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स विच विल बी अ डिफरेंट सिलेबस, अ डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स, डिफरेंट चैलेंजेस, तो उसका फील अलग होता है, एग्जाम अलग होगा। तो वो कर सकती हो, उसको क्लियर करके फिर डिसाइड कर लो उसके बाद कि भाई अब हम्म। मैंने एक्सटेंशन लेना है कि नहीं लेना है, या फिर सिचुएशन जो होगी तो जो ये भी बिल्कुल वैलिड बात है, बिकॉज एज इज इन योर फेवर। यूपीएससी का ना देके जी सीएपीएफ का दे लो या और किसी एग्जाम का दे लो, जी जी, स्टेट और सर यूपी स्टेट का पीसीएस का दे लो। ही सोच रहे थे। हाँ हाँ स्टेट का यूपी। दे लो, कोई इशू नहीं। जी इनफैक्ट अभी तो जितने मिले फिर सब दे लो ना, जो इस एज में अलाउ हो रहे हैं तुमको। फिर बाद में जी उम्र जी निकल जाएगी, फिर चिड़िया चुग जाएगी खेत, जी जी। फिर कुछ नहीं होगा। ओके। हाँ, तो अगर एक ब्रेक चाहिए और एक डिफरेंट वो करना है, एक्सपीरियंस करना है, और सिर्फ एक सिक्योरिटी के एंगल से देख रही हो, तो जी। क्लियर करके छोड़ दो उसको। हम्म। ज्वाइन करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है ना। जी जी जी, जो वही अभी, है सर हाँ तो जो अभी दिमाग में। एलिजिबल हो जिस चीज के लिए, वो तो सब कर लो ना फिर। अगर यूपीएससी नहीं कर रही अभी, तो हम्म। जहां जहां पैर डाल सकती हो सब जगह डालो। जी जी। हाँ, तो क्योंकि प्रिपरेशन सेम ही तो होगी, सीएपीएफ की भी सिमिलर हाँ ही है। हाँ, हाँ। ये सर बस वो स्टेट का एक स्पेसिफिक अलग पढ़ना होगा, हम्म, बाकी तो सेम ही है सारी। सिमिलर सिमिलर है बिल्कुल। एंड सर प्रीलिम्स भी 2 बार से जो रुक रहा है, तो 2023 में मेरा 74.75 स्कोर था, मतलब आई मिस्ड बाई 0.25 मार्क्स। हम्म, और इस बार भी आई आई थिंक मेरा स्कोर 90 टू बहुत क्लोज है। 92। हम्म। जी, तो 90 टू 92 बन रहा था। हम्म। तो अगर कट ऑफ 95 भी होगी तो मे बी अगेन आई एम हम्म। इन द सेम रेंज की। हम्म। हम्म। तो ये है सर, इस वजह से और डिमोटिवेटिंग हो रहा है कि बिकॉज सारा हार्डवर्क करने के बाद भी। आई नो, होता है। अब देखो, अल्टीमेटली आज अभी जब तुम्हारे से बात हो रही है, यही बात अब एक और स्टूडेंट से हो रही थी, दूसरे वाली जो सीएपीएफ वाली नहीं, एक और से हो रही थी। जी वो भी वही कि मैंने इतने अच्छा किया है अभी तक लाइफ में, और इतने अच्छे कॉलेज से एडमिशन हुआ, मेरा पढ़ाई हुई, वो सब कुछ हुआ, और ये एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, 5 अटेम्प्ट हो गए हैं, ऐसे प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा। शी वाज अगेन ऐसी परेशान। और कोई भी इंसान होगा, कोई भी इंसान परेशान होगा। तो मैंने उसको भी यही बात बोली कि देखो, या तो इस बात को लेके ये सोचते रहो कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, मैंने तो इतनी जी मेहनत करी, मेरे से कम मेहनत वाले लोग निकल जाते, या तो ये सोच लो, या ये सोच लो कि भाई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई। जी 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 अब वो कमी आइडेंटिफाई करो और आगे बढ़ो। जी क्या सोचना है वो तुम्हारे हाथ में, जी। है ना। तो हम्म। जितना, और फिर माइंड की आदत होती है, देखो जैसे थॉट्स दिमाग में रखोगे, वैसा ही तुम्हारा एटीट्यूड बन जाएगा, वैसा ही नेचर बन जाएगा, वैसा ही और थॉट्स आएंगे। फिर वो पॉजिटिव यस सर। रखोगे तो वर्चुअस साइकिल में रहोगे, नेगेटिव रखोगे तो विशियस साइकिल में रहोगे, है ना। तो सोल्यूशन क्या है, और एक इस कैलिबर के नौकरी की तुम इच्छुक हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गुण तो है ना तुम्हारे अंदर, इसीलिए तो तुम्हारे मन ने बोला कि मैं ये एग्जाम दूंगी, ये करियर मेरे लिए ठीक है। जी जी तुम उस चीज के ऊपर, अपने उस गुण के ऊपर जाओ ना। पेपर नहीं पास हो रहा, वो तो पता ही है नहीं पास हो रहा है, लेकिन ये जी सोच के कि मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे साथ वाले यहाँ तक पहुंच गए, सब लाइफ में सेटल हो रहे हैं, मैं नहीं हो रही, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है देखो, जी जी है ना। तो प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है, कड़वा घूट है, लेना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्विकेस्ट वे आउट इज दिस ओनली, यू शुड टेक अ ब्रेक एक्चुअली। थोड़ा सा हम्म। ब्रेक लो, जी बहुत ज्यादा इस थॉट को परस्यू मत करो अभी, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, कुछ दिनों के लिए एक ब्रेक लो, जस्ट थोड़ा इसे डिटैच हो जाओ, एंड देन कम बैक टू इट, देन गिव इट अ थॉट कि मैंने यूपीएससी का ही करना है कि क्या करना है। ये वाली जी बात जो तुम कह रही हो मुझे अच्छी लगी कि अदर कोई भी एग्जाम देके निकाल के उसको रख लो जी जी और फिर यूपीएससी में घुस जाओ। ये ऐसा होता भी है कि आपने अगर कुछ एक सक्सेस छोटी सी भी मिलती है ना, सक्सेस, तो वो जी। हमको बहुत बूस्ट करती है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, 11वीं क्लास में तो साइंस में फेल होते होते 30% 35% नंबर आए थे साइंस में।
ठीक है, और फिर जी 11वीं रिपीट करी जब चेन्नई पोस्टिंग हुई पिताजी की, तो वहाँ कुछ एज जी का हो गया था कि इतनी एज में 12वीं में नहीं करेंगे, तो फिर 11वीं रिपीट करी, वो फिर कॉमर्स विद मैथ से करी। तो अच्छा 35% में जो साइंस थी वो जी जी कॉमर्स विद मैथ्स में थोड़ी सी पुश, बस स्कूल जाने से पहले 2 महीना ट्यूशन ले लिया था अकाउंट्स का। फिर वो जी क्लास में जब गए तो वो जो टीचर बताती थी वो थोड़ा बहुत पहले ही पता होता, तो वहां से कॉन्फिडेंस आने लगता अपने आप। कॉमर्स में उसमें नंबर ठीक आ गए थे, 12वीं नंबर ठीक आ गए, डीयू में एडमिशन हो गया। मतलब फिर थोड़ा, मैं ये बस कहने का ये बात है कि एक छोटा सा भी एक सक्सेस मिलेगा ना, वो आपको अगले जी सक्सेस तक मोटिवेट कर देता है, जी 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 आपको फोकस्ड बना देगा, बस ये जरूरी है। सर वही मतलब रफली यही प्लान रखा है अभी दिमाग में कि 27 अक्टूबर यूपीपीसीएस की डेट आई है। हम्म तो अभी उसको दे, क्योंकि उसमें बस एक यूपी वाला पार्ट ही अलग पढ़ना पड़ेगा, जीएस 1 2 3 4 भी सेम है एज हम्म यूपीएससी। हम्म जीएस 5 6 उनके बस अलग होते हैं। हम्म। एंड देन आई एम टारगेटिंग कि 2026 वाला यूपीएससी का अटेम्प्ट दे दूं। और 2 साल में जो मतलब मेंस का प्रिपरेशन है वो, बिकॉज आई हैव ओनली वन अटेम्प्ट लेफ्ट, तो रैंक इम्प्रूवमेंट का फिर कोई चांस नहीं मिलेगा। तो दो अपना सालों फिर में। अभी यूपीएससी मत करो, अच्छे से हम्म। यूपी का दो, पीसीएस का, जी उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है यूपीएससी वाला। बिकॉज स्ट्रेस जी जी में ये अटेम्प्ट देना ठीक नहीं है। या यस तो ये बोलो कि भाई मैंने जो करना है बस अभी ही करना है, अग्रेसिवली अगर कर सको तो ही करेंगे। अगर अभी ऐसा लग ओके। रहा है कि थोड़ा डाइसी सा मामला हो सकता है, तो फिर वो हम्म। यूपी पीसीएस भी हाथ से निकलेगा और ये भी निकलेगा। यस सर। तो इसको ब्रेक देके हम्म। दूसरी जगह कहीं सक्सेस आ जाओ और सारे एग्जाम भर हम्म। दो, जो भर सकती हो जी सब भर दो, जो जी भी जी तुम्हारी एज में एलिजिबिलिटी में जहां भी फिट बैठ रही हो सब ओके भर दो। कहीं एक भी निकलेगा वो वही हमको बस डूबते को तिनके का सहारा चाहिए बस, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिट हो जाएगा सब, डोंट वरी। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मैं समझ गई कि इफ मतलब आई हैव टू गो फॉरवर्ड विद द यूपीएससी ऑप्शन, तो मतलब एकदम 100% डिटर्मिनेशन होना चाहिए और तभी पीछे हो का कोई तभी बैक। निकलेगा। जी जी। हाँ, ये माइंडसेट हल्का अगर हुआ ना तो इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी एफर्ट में, फिर यस सर, जितनी और फिर इंटेंसिटी तुम्हारे माइंड में होगी उतना ही एफर्ट में आएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एनी टाइम वैष्णवी, थैंक यू। यस गाइस, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? Ankita, Ankita has a message, let me just see. Ankita, I think I am in worse situation here than anyone else. I'm 30 years old, so my fifth attempt. 2023, Finland means okay. I've done graduation and masters in English literature, and then I started preparing. Okay. So, what is your question, Ankita? What to do next? Should you give UPSC or not? I mean, what do you want to ask? Is Ankita here? You're here. Should you keep preparing for UPSC? Uh, See, that's a call which really you have to take, and it's a very difficult decision to make. It's a very challenging decision to make, because again, I'll share my personal story with you. I gave only 3 attempts at UPSC. I cleared prelims twice, and I could never clear mains. But there were several reasons for why I could never clear mains. It was mainly due to the stress factor, mainly due to lack of good guidance, mainly due to the self रिमोर्स कि मैं तो मेरे से होगा कि नहीं होगा, कि 2 साल निकल गए, 4 साल निकल गए। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी, अंकिता? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? कैन यू ओपन योर माइक? Yeah, hello. Yeah, yeah, Ankita. So can I Yes, speak in yes. Hindi also, or Yes, sir. do you? Yes, Yeah, please. okay. So I was telling that I gave just 3 attempts at UPSC, and I could not clear mains in any of those. I cleared prelims twice. But in those 3 attempts, I gave, I think, 4 years.
4 years. November 2011 I started, Yes, sir. and 2015 नवंबर 2015 में शायद मेंस हुआ था, भोपाल से किया था मैंने 4 साल. 4 years of my life I invested in those this thing UPSC journey. But even when I had more attempts, still I did not Yes, sir. give, because I was in such a bad state mentally that I wanted to really take a call about whether this job, this career is for me or not. And it took a lot of introspection, it took a lot of reading, it took a lot of self reflection, writing, to figure out who I am, in the sense of what are my strengths and weaknesses, likes and dislikes, and what kind of career am I suited for, or am I looking at. So when I got to those answers, then only I could have the courage to decide कि और नहीं देना है. फिर 2016 जनवरी में दिल्ली आ गया, फरवरी में. तो I mean, and that's why I'm telling you, it's a very challenging decision to make whether you should give a UPSC or not. Maybe you're not made for UPSC. Maybe you're, like for me, I'm not made for, I mean, मेरा personal ये होता है कि मुझे freedom of thought and freedom of expression बहुत जरूरी है. मुझे, मेरा mind ही ऐसे ही काम करेगा. मैं नहीं survive कर सकता जहाँ पे restricted environment है, constrained environment है, नहीं होगा. It may be my some personal issue, it may be some psychological, कुछ भी हो सकता है. बट जो एक मेजर रिक्वायरमेंट है, कोई भी काम मैं करूं, उसमें मेरे को फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरे को चाहिए, जो कि नौकरी वाला जो माहौल होता है उसमें मुझे पर्सनली थोड़ा कंस्ट्रिक्टिंग फील होता है, घुटन फील होती है. इसीलिए नौकरी बहुत तरह की करके देखी. MBA के बाद मार्केटिंग की नौकरी करके देखी, वैसे पढ़ा के देखा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा के देखा, कैट मैट ये सब एग्जाम्स का पढ़ा के देखा, अंग्रेजी पढ़ाई, लॉजिक पढ़ाया, सब कुछ पढ़ा पढ़ू के, और इंस्टीट्यूट्स में हर तरह का एक्सपीरियंस लेके आई फिगर्ड कि यार मेरे लिए मेंटरशिप वाला काम जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसमें मेरे को शांति मिलती है, इसमें मेरे को खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है. एंड रिसर्च का काम, आई फील लाइक माई स्ट्रेंथ इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन इज माई स्ट्रेंथ. सो माई प्रोडक्ट्स एंड एनालिसिस इज, रिसर्च इज माई स्ट्रेंथ. सो माई प्रोडक्ट्स, वो टूल PYQ वाला, उसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको. एनालिसिस का ET का मेरा प्रोडक्ट है, वो ठीक है, गुड इनफ है, राइट. सो द थिंग इज, खुद को जितना जानोगे, ये डिसीजन आप, इसीलिए आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है. बिकॉज इफ यू आर नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग एंड इफ यू जस्ट कंटिन्यू कि और एक साल देखते हैं, तो मे बी यू आर नॉट मेंट फॉर इट, और एक साल और यू विल बी पनिशिंग योरसेल्फ. बट it may also happen that you are actually made for it. There are certain things which are weak. If you work on them, you'll be doing a good job. Yes, sir. Sir, if I may not interrupt you, I want to tell sir that after my 2021 attempt, I mean that was my third attempt, which I could not clear. Then I took 1 year gap because I was overweight that time. I became overweight. So for my health issues, I took 1 year gap, in which I did whatever I could do. And then, I mean, with terms of my health, as well as mind, mental health, physical health, both. And 2000, and then 2022, I did not give my attempt. 2023, I qualified prelims for the first time. And 2020, this 24, I think, I don't know, maybe I was getting 93 for whatever. But again, I have not qualified. So all that is happening with me. That's why the 1 year break I have already taken, sir. I cannot actually afford to take any more break in UPSC. I must either do this or have to just give another exam. So that's what I'm saying, no? That's what I'm saying. Should I give the attempt or not? This can be judged from at least two parameters, two angles. One, whether you are made for UPSC civil services or not, which I am an example of. I am not made for that job kind of environment. I need to have certain amount of freedom, and that's why this entrepreneurship kind of thing is suited more for me. So I'm at least in better mental health than I was in when I was preparing, or probably when I was in different jobs. So, and I'm doing fairly well in the sense that I'm able to
add value to people's lives. So Yes, I'm sir. happy about it. I'm satisfied about it. So that's why I'm happier today than I was when I was preparing. So एक angle तो ये हो गया कि are you made for UPSC or not? This requires introspection. This nobody can answer except you yourself, and you'll need to introspect about it. If you feel that you are made for UPSC, that's not an issue at all. Then should you give or should you not give comes to more concrete things. Like ये जो हुआ ये इसको हम एक तरीके से बोलेंगे mindset वाली चीज कि are you made for UPSC or not, or is UPSC for you? Don't say you are made for UPSC. Is UPSC or is civil services as a career for you or not? You should that's more correct way of looking at it. और दूसरा है if it is true, yes, civil services as a career is for you, you'll be happy in that career. Then you come to more concrete, more narrower things, more mechanical, so to say, things about what is the situation, how badly do you want a job, or your financial situation, and what went wrong in the previous attempts, analysis part. Are you prepared for mains or not? Can you have a break, or could you give in 2026, or do you have to absolutely give in 2025 only? तो ये सारी Yes, sir. बातें फिर आ जाएंगी. Sir, any parameter to judge whether UPSC is made for me or whatever? Whether civil services is made for you or not. See, अब मैं कोई ऐसा बहुत ज्यादा ज्ञानी ध्यानी तो नहीं हूँ इस मामले में, but how I decide the most important things, most important decisions in my life, how I take them is by having my red lines, 2 or 3 red lines, which I absolutely want to be present in whatever I do. Whether it was a decision of marriage, whom to marry, whether it was decision of what to do. Do I want a job? Do I want, to have entrepreneurship kind of thing? What do I want to do? So, or any other thing, most important decisions of my life, I have these red lines, I have those pointers, which must absolutely be checked. They must be present for me to take up that decision, to say yes to that thing. So you have at least 2 to 3, don't have too many, don't have too less, at least probably 2 or 3 is good enough. 2 or 3, those most important points which you want to have in your life, which will make you happy, which will make you peaceful, which will make you feel fulfilled. How other people think about you, or what they opinion of others about you is certainly not what is important here. What you think about yourself, what is important for you, what makes you really, really happy, what is happiness for you. That's why I'm telling you, na, introspection wala jo phase tha meri life ka, I was in such bad mental state in those days. I could not trust, like that amount of overthinking, excessive thinking was there in my head, that I could not trust my senses. I could not believe what my eyes are showing me. Is it true? Is it there or not? What my ears are hearing, is it true or not? I can understand, sir. Yes, such excessive amount of pressure was there. I was almost on the brink of insanity. Okay, because that's what is insanity. Na? You can't trust what is there. If you can't trust your senses, how do you exist? Right? You need to trust what your eyes are showing you, what your hands are touching, ears are hearing. You need to trust that, right? Yes, and sir. yes, so pulling and there was nobody to talk to. I've literally given blank answer copies in mains. I've submitted blank answer copies in mains, because with such a mindset, I couldn't even sign my name properly. I started signing in front of some other students' credentials. वो तो टीचर ने देख लिया क्या कर रहा है, नहीं तो और किसी का भी साल खराब, मेरा तो होना ही, और किसी का भी साल खराब होना था. देखो, I was in such bad mental state, and nobody to talk to. और फौजी फैमिली से बिलोंग करता हूँ. फौज में ये सब मतलब इसको वीकनेस समझी जाती है कि ये मेंटली वीक है. ये और हो भी सकता है, हाँ मेंटली वीक है, लेकिन इफ अब इसके बहुत सारे और कारण हो सकते हैं. लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, बट द पॉइंट इज देयर वाज नोबडी टू टॉक टू, और देयर वाज नो गाइडेंस. जैसे अभी मैं तुमको अपना बता रहा हूँ खुल के,
कि मेरे साथ कैसा हुआ ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, और अगर तुम भी ऐसा फील कर रही हो तो तुम उसी दिशा में जा रही हो। आई कैन टेल यू एटलीस्ट किस पॉइंट तक, ब्रिंक तक तुम कहाँ तक पहुंच सकती हो, कहाँ से मैं वापस आया मैं ये बता सकता हूँ। तो मैंने तो लिखना शुरू कर दिया था, मैंने पढ़ना शुरू, आई वेंट इनटू रिलीजन, आई वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी, आंसर, आई वांटेड आंसर्स ना, who am I, what am I, what is happiness, what is truth, what is false, what is सच, what is झूठ, सबको खुद लिखना शुरू किया। मेंस वेंस की तैयारी सब छोड़ दी मैंने, इसलिए ब्लैंक शीट्स लेके आता था। लेकिन Yes, sir. उससे मुझे जो जवाब मिला तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इसमें लाइफ बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब आई नीड टू be responsible for my life. Then I started धीरे धीरे I started taking small steps. I started teaching, मतलब जहाँ मौका मिला थोड़ा लोगों से मिलना शुरू किया, थोड़ा छोटा मोटा पढ़ाना शुरू किया। केम टू दिल्ली इंस्टीट्यूट में कोई था, एक करियर लॉन्चर करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पढ़ाया। अंग्रेजी पहले था, थोड़ा अंग्रेजी करके देखते हैं क्या होता है। आई जस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग थिंग्स। अंग्रेजी पढ़ाया, Yes, लॉजिक sir. पढ़ाया, फिर अपना कुछ छोटा मोटा शुरू किया, फिर सिविल्स के इंडस्ट्री में दोबारा से वापस आया। सब कुछ सारी चीज़ें देख ली मैंने, आंसर चेकिंग से लेके जो भी है सिविल्स के इंटरव्यू से लेके सब कुछ देख लिया मैंने, सब एक्सपीरियंस कर लिया। फिर डिसाइड किया कि मतलब इन, फिर कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि आई हैड टू कम आउट ऑफ द जॉब। देन आई कुड फिगर आउट कि यार मोटा मोटा अपना काम करना थोड़ा ठीक ठाक सा रहेगा शायद। तो 5 साल से वही कर रहा हूँ। so I would not say I'm very stable in life, certainly not. I'm talking in financial terms, but mentally, yes, I'm pretty happy, I would say. Wow. ठीक है। तो Yes, sir. हाँ, बचपन में था कि फौजी बनेंगे, वर्दी पहनेंगे, तो फॉर सम सिचुएशंस नहीं किया, फौज नहीं ज्वाइन करी, इधर आ गए। तो फिर Yes, sir. मतलब आई डोंट रिपेंट कि तब एसएसबी देने जाना चाहिए था। आई डिडंट गो फॉर एसएसबी, एमबीए कर रहे थे उस टाइम। अब मुझे पछतावा नहीं है उस बात का कि एसएसबी नहीं दिया। आई एम हैप्पी कि नहीं Yes, दिया, बिकॉज जो जीवन में जो सीखा आज तक, अगर शायद फौज में भर्ती हो जाता तो नहीं सीखता ये सब चीजें। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद माय लाइफ एक्चुअली। आई हैव एवरीथिंग, और पैसा ही नहीं है ना, सब बाकी सब yes, कुछ sir. तो Yes, yes, ठीक है, वो भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। मैं आप मतलब definitely, देखो, sir. दाल रोटी जितना तो निकल जाता है, बाकी देखी जाएगी। सो That's very humble of you, sir. मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज एक्चुअली द सिचुएशन विद यू, बिकॉज आई कांट टेल, मतलब दूसरे का जीवन का मुझे नहीं पता है, मैं अपने जीवन का बता सकता हूँ तुमको। अभी तक 40 साल उम्र होने वाली है मेरी, Yes, sir. तो मैं वही शेयर कर सकता हूँ, और मैंने कैसे डील किया वही मैं बता सकता हूँ। तो जो तुम ये कह रही हो कि कैसे डिसाइड करना है कि ये तुम्हारे लिए है कि नहीं Yes, सिविल्स की नौकरी, तो तुम अपने रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करो। अगर वो सब कुछ तुमको मिले उस नौकरी में तो ठीक है। उसके बाद भी बहुत, मतलब परफेक्ट डिसीजन कभी नहीं मिलता, परफेक्ट सोल्यूशन किसी चीज का कभी नहीं मिलता, परफेक्ट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती। तुमको सिर्फ अगले 2 कदम और एक ब्रॉड दिशा किसमें जाना है वो पता चलेगी। समझ रहे हो? yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब जैसे मुझे ब्रॉड दिशा पता है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का, जहाँ पे फ्रीडम हो सोचने की, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूं, और मतलब मेरे को है फ्रीडम, तो फ्रीडम मेरे को इस वेंचर में है। अब इसीलिए मुझे नहीं, अब परफेक्ट नहीं पता होता, प्रोडक्ट्स शुरू भी होते बंद भी हो जाते हैं। मैंने ओरल टेस्ट का करना है, 15 बच्चे चाहिए कम से कम, उससे कम में इतनी मेहनत है कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता वो कोर्स। तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देखते हैं फ्री ट्रायल के पास। समझ रहे हो? Yes, sir. मॉक टेस्ट इस बार सोचा है कि स्टार्ट करेंगे। अब कितना करें, कितना मॉक टेस्ट दे पाएंगे, 4 तो जरूर बनाऊंगा, वो तो ईटी कोर्स का पार्ट है, लेकिन अब उसके बाद कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा ना, देखेंगे। Sir, to be honest, मैंने स्क्रॉल करा था हम्म मतलब ग्रुप को, हम्म बट मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ, समझ नहीं आया मुझे। हम्म तो मतलब, but okay, that was my next question about courses. If I have to buy, then which courses I should buy? But the first question was whether I should prepare for this or not. हाँ, So पहले तो वही है ना, कोर्सेज को तो yes, बाद sir. में सोचना। Yes, sir. और Yes, उसका sir. जवाब देखो, तुम ही दे सकती हो और कोई नहीं दे पाएगा। Yes, sir. गाइडलाइंस मैं बता सकता हूँ, देखो मैंने कैसे डील किया ऐसे प्रॉब्लम से वो बता सकता हूँ। अगर वो सेंस बना रहा है तो तुम करके देख लो फॉलो, Okay, sir. राइट। Okay. बाकी और कुछ और थोड़ा मोर मैकेनिकल टाइप का बात हो
कुछ स्मॉलर उसकी हो टाइम ड्यूरेशन की, या वैसे अदरवाइज किसी प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ और इशू हो तो वो मेरे को अलग से मैसेज कर देना, आई टेल Definitely. Glad, sir, glad for your help. एनी टाइम, राइट? Yes, sir. थैंक यू, Thank you. थैंक यू, ऑल द Thank you. बेस्ट, ऑल द बेस्ट. Thank you so much. एनीथिंग एल्स, एनीवन? हेलो सर. हाय. सर शहनशाह here. हाँ शहनशाह, अरे कैसे हो? Sir, I'm good sir. हाँ बताओ. How are you sir? बस यार वेरी फाइन. सर एक्चुअली जो आपने शेड्यूल डाला था हम्म. तो आई हैव स्टार्टेड दैट. मैंने मतलब अभी से स्टार्ट नहीं किया, बट मैं 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था जैसे आपने बोला था. दिस इज ऑब्वियसली लास्ट अटेम्प्ट है. तो कैन आई टेक बोथ द थिंग्स एट हैंड, लाइक स्टेट पीसीएस एंड दिस आल्सो? See, state PCS is going to cost you at least 2 to 3 hours daily. हाँ. ठीक है, 2 से 3 घंटा तो लगेगा उसमें, और कंसिस्टेंटली लगेगा लंबे समय तक. तो इवन इफ नोटिफिकेशन इज नॉट आउट, स्टिल इफ यू विश टू राइट स्टेट पीसीएस तो अभी से ही 2 घंटा लगाओ, तो नोटिफिकेशन के बाद भी 2 ही घंटा देने की जरूरत पड़ेगी फिर. ठीक है. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग सर. यस यस. तो बिल्कुल कर सकते हो. अब तुम तो घर से बाहर रह रहे हो तो थोड़ा फाइनेंसिस देखना भी जरूरी है ना? तो दैट यू विल हैव टू मैनेज अ बिट कि भाई कैसे उसको देखोगे, बिकॉज पार्ट टाइम जो भी जॉब जो है वो भी देखना है. अब वो कंपल्सरीली देखना पड़ेगा जॉब वाला पार्ट तो. एंड 2 घंटा एटलीस्ट स्टेट पीसीएस तो लेगा. यूपीएससी कम से कम जो मेंस की, मैं सिर्फ अगर बात करूं तैयारी की, मेंस वाली जो है मिनिमम 4 to 5 hours पर डे कॉस्ट करेगी ही, इफ यू वांट टू स्टैंड एनी चांस ऑफ क्लियरिंग. 5 घंटा देना ही पड़ेगा 5 hours डेली. डेली. तो 5 hours की तो मेरी जॉब भी है. 5 की जॉब है, 5 की पढ़ाई करो और 2 घंटा स्टेट पीसीएस, तो 12 घंटा हो गया तुम्हारा. जी सर. ठीक है. तो बाकी फिर प्रीलिम्स की बात आती है. प्रीलिम्स में फिर देखो फिर गुंजाइश क्या निकल रही है, बिकॉज सब कुछ तो कर नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए भी चाहिए. तो 15 घंटे का भी शेड्यूल बनाना ठीक नहीं है. 12 ही कर लो, वही एक चैलेंजिंग बात हो जाती है जॉब वालों के लिए. तो प्रीलिम्स में अगर अभी नहीं भी शुरू करना तो फिर कोई इश्यू नहीं, या कुछ छोटा मोटा शुरू करना चाहो वो भी कोई इश्यू नहीं है. सर ओरल टेस्ट तो मैं करना चाहता हूँ अभी से ही. ओरल टेस्ट कम से कम 1.5 घंटा कॉस्ट करेगा तुमको. 1 घंटा पढ़ाई का और आधा घंटा क्लास का, मंडे टू फ्राइडे. चलेगा सर, मैं मैनेज कर लूंगा. हाँ तो फिर ठीक है. फिर तुम अभी ईटी वगैरह मत ज्वाइन करो फिर. ईटी बिकॉज अलग से आधा घंटा खाएगा रोज. नहीं सर, ईटी तो नहीं, अभी नहीं करूंगा. ईटी तो हम बाद में करेंगे. हाँ ओरल टेस्ट अगर में जब होगा तभी करूंगा. हाँ तो अगर तुम ओरल टेस्ट एंगल से देख रहे हो तो 1.5 घंटा अगर तुम दे सकते हो मंडे टू फ्राइडे तो ठीक है, फिर परफेक्ट है, कोई इशू नहीं. सर हाँ, दे दूंगा. मैं वीकेंड्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लूंगा, वो कोई इशू नहीं है मुझे. हाँ. ट्रायल लेके देख लो एक बार, 5 दिन का पहले एक बार ट्रायल लेके देख लो. अगर इफ यू फील इट्स वर्थ इट, इट्स गुड इनफ, तो certainly you can join, not an issue. But don't जी सर. bite मैं more than you can chew. That's most important. वो फिर प्रेशर क्रिएट होता है. नहीं तो लंबा दौड़ना है तो हल्का रहना बहुत जरूरी है, और रिवीजन करना, रिवीजन के लिए समय निकलना चाहिए. हाँ. आई हैव ओनली वन डाउट कि मैंने एनसीईआरटी तो स्टार्ट करी जैसे आपने पिछली बार बोला था. शुड आई स्टार्ट मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे नोट्स बहुत बल्की है. बल्कि नोट से काम नहीं चलेगा. क्रिस्प एनसीईआरटी नोट्स चाहिए, हल्का नोट्स चाहिए, जो बिल्कुल सर माइक्रो मतलब नोट्स जो होते हैं. क्रिस्प इन द सेंस मेरे नोट्स बहुत क्रिस्प है. लाइक इट्स अराउंड 200 पेजेस ओनली, जिसमें पूरा जीएस है. हाँ तो फिर ठीक है. इफ यू आर हैप्पी विद इट देन इट्स ओके. देखो अल्टीमेटली यू बट हैव सर टू बी एबल मार्क्स टू नहीं आते ना रिवाइज. उससे. तुम ओरल टेस्ट में आओ, देखते हैं क्या दिक्कत है. मैं जो सवाल पूछूंगा उनके जवाब दो, लेट अस सी. तुम ठीक है सर, डन. प्रीलिम्स के नोट्स की बात कर रहे हो. जी जी जी. मार्क्स नहीं आ रहे हैं, देखो सब कुछ नोट्स में नहीं लिखा जा सकता. बहुत सारी चीजें पीवाईक्यूज
के एंगल से भी होता है, यूपीएससी का माइंड तुम समझ कितना अच्छे से समझ रहे हो, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें उसकी वाइब कैसी है, वो कितने अच्छे से फील कर रहे हो, ये सब एलिमिनेशन कोर्स का पार्ट है फिर। मतलब वो दिक्कतें हैं, तो वो तो दिक्कतें हैं सर, तो वो टाइम वो के तो आपका। साथ होगा। बट देखो, एक डिसीजन जो तुमको अभी बनाना है कि कोर्स कौन सा ज्वाइन करना है, ओरल टेस्ट वाला करना है ओरल टेस्ट, कि एलिमिनेशन करना है, ये सोच समझ के ओरल डिसीजन टेस्ट लेना। अगर क्लियर है तो ठीक है, क्लियर है तो सर, कोई क्लियर इशू है, नहीं। ओरल टेस्ट ही लेना है। तो बस, तो फिर क्लास एक बार शुरू होने दो, फिर देखो कि जो तुमने नोट्स में लिखा है और जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो कितना वो कर रहा है, मैच कर रहा है, फिर देखेंगे कहाँ कमी है। मंडे ठीक से है, ज्वाइन करते हैं। हाँ, मंडे से बिल्कुल 1 बजे दोपहर को। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई थिंक somebody messaged. Hello, sir. Hello. Hi, hi, Rajni. Yes, tell Yes, me, sir. please. Actually, sir, I one more attempt. Just अभी तक I didn't couldn't clear prelims. कितना टाइम दे दिया? 5 attempts हो गया. अभी just Okay, I left with one last attempt. okay. 2025 it's going to be my last attempt. Hmm. And recently I got qualified for state PCS You qualified for state PCS? and made yeah Okay, in the good, prelims. मुबारक हो। अच्छा, चलो, फिर भी मुबारकबाद। हाँ, And फिर main is going to be in October. हम्म So I want to continue my preparation in the UPSC. Like I want to give next attempt. Should I skip this attempt or can I completely wholeheartedly prepare for this state PCS? I don't know how to proceed further. Like How old are you? 27. So you have age, right? From UPSC angle, you Yeah. have age in your hands. And are you mains ready? If Yes, sir. you, Last year itself, I have made consolidated notes for every topic and for optional also. And I have written PYQs also from 2013 to 23 tak. okay, okay. So you have your state mains coming, right? State PSC mains coming. Yes, sir. Surely you should be serious about it. You should give it, prepare seriously for it. So at least 4 to 5 hours you should give for your state mains preparation. And a lot of it will certainly overlap with UPSC also, right? Yes, yes, sir. But no, optional nice. ऑप्शनल नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, ऑप्शनल के लिए अलग से 2 घंटा, फुल टाइम यू आर प्रिपेयरिंग, राइट? Yes, sir. So 5 hours you give to state PSC mains. This will Okay. overlap with GS papers of UPSC mains, right? Yes, sir. GS papers को अलग से नहीं तैयार करना है फिर, 5 hours is sufficient for that. You focus Okay. mostly on your state mains. Through them, whatever GS mains is prepared, it's prepared. Don't study GS mains अलग से. Okay, for Okay. UPSC. Give 2 hours certainly to your optional. Okay, Okay. and at least 1 hour every day, or maybe alternate days you can shift between essay and ethics, because it is optional essay and ethics that will get you the rank and the service. GS papers Okay. are too dicey for that, right? So Yes, sir. and the revision best way, when I say 2 hours per day, the best way to revise would be just writing tests. If you have written like open book test, like you see the question and then you read for it and then you write the answer, if you've done that way, if you know how to write, if you have learned answer writing, Yeah. the next step is memorization of keywords, data, example, presentation. Okay, writing without seeing the question. Question should be fresh, or if not fresh, at least write without seeing the question. In the sense ki you give like one full paper, full year papers. So write like 3 hours test. Huh? In the sense, at the end of the day, like our Mock test. No, you can give it once a week. okay. You can give like, if you give once a week 3 hours on one day, and other days you just give 2 hours to analyze oblique prepare current affairs for optional. What's your optional? Geography. So a lot of current affairs is there in that.
Yeah, right? yeah. Then what So, about prelims, sir? These prelims I'm getting around 91 to 93 according to various grades. so you're very close. That means you would be pretty good in the knowledge aspect. Things would be fine in the knowledge aspect. Maybe a little bit of push from elimination angle would help. Knowledge is already pretty good. Okay. Any course for that, like I can join after my mains, like how to go with See, that? if you my course for elimination will start from 1st of August itself. You can join it anytime. You can join it early. If you join it early, it will cost you at least 30 minutes per day to practice. And joining Okay. early is advantageous in the sense that you'll be able to attend classes live, ask your doubts, make more mistakes because you'll have more time in your hands. If you join late, I won't be having separate batches for people like from 1st of January or something. I'll just have one batch which will start from 1st August and will go till 24th May 2025. Just one batch is there. Every class will be recorded. So on whatever date you join the course, you'll have to manage with the videos of the classes which have already happened. So if Okay, you're sir. okay with doing it via the videos, then you can join anytime. But if you feel that's a burden, it's better to attend the classes live, which is just one class per week on Sundays, 7 p.m. to 9 p.m. Otherwise, 30 minutes every day for practice you will need. So if you feel you can give that, which personally I don't think should be much of a problem because you're already pretty decent in the knowledge aspect. All right. Yeah. And knowledge aspect you'll be preparing for the state mains also. So वही history, वही geography, वो सब तो पढ़ो ही की. Right? Yeah, yeah. Yes, sir. So knowledge aspect is not an issue. What you need a push is elimination, and doing it early will give you more freedom to make mistakes because you'll have more time in your hands. If you join Yeah. late, then making mistakes could become challenging. And you need to make mistakes. Without making mistakes, you won't understand. And you Yeah, need to yes, discuss sir. your mistakes. You need to attend classes for that. So if you can manage 30 minutes per day, which personally I don't feel in this situation, in which you are in, should be a problem. It's just 30 minutes per day and weekly one class of 2 hours in the evening. If you can manage that, I would nudge you to join from the beginning itself. Otherwise, you know your situation best. You should join whenever you feel it will give you most value. You should not just join just because I'm saying it. Whatever you feel is the best point to join. तभी वो value create करेगा. Otherwise, it will just become a burden. Yeah, sure. Yeah. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rajni. Anything else? Anyone? Hello, Rakesh sir. Sabha here. Hi. Prabha, hi. Azmi, Sabha. Sabha, hi. Hi, Azmi. Sabha. Huh? Azmi, Azmi, Sabha. Azmi. Acha, Azmi. जी, Yeah, how are you, Azmi? जी, Yeah, ठीक tell है me. सर. हाँ, बताओ. सर हमें तो ये है कि कोर्स लेना है. लेकिन सर सब बोल रहे हैं कि बैकअप पे भी वर्क करूँ. तो उससे थोड़ा डाउट हो रहा है कि यूपीपीसीएस आ रहा है 27 अक्टूबर को. So I have to prepare for prelim also. And plus UPSC mains also I am doing. Now I have to do the course also. So time management issue आ रहा है सर. थोड़ा सा वो हो रहा है. Last attempt है UPSC का next year, 425 में. Yes. And how old are you? 30 plus sir. Attempt due to age bar I have to give the attempt. अच्छा, you have to give, हाँ. तो Yeah, देखो अगर देना ही है तो इसका मतलब UPSC is a priority than state PSC, right? जी. But everyone is confusing me since the result came ना कि now you have to. भाई देखो मुझे ये लगता है कि जब देना ही है UPSC, you are absolutely clear about it कि UPSC देना ही है ना? Sir, इसमें actually कोई ना doubt नहीं. I gave first 4 prelims. I couldn't clear. हाँ. Then also I took a 2-year break, 2022 and 23.
I gave RDI, SEBI, IFSCA, PFRDI. I gave so many, all the regulatory bodies exams. I cleared all, gave names, and out by few marks. I gave my statistical assistant. It has only single stage. That also I couldn't clear by few margins. Only 2 to 3 questions. If got correct, then I would be in. तो सर अब यहाँ पर भी मैंने सब जगह ट्राई कर ही लिया है, तो बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है कि अगर बैकअप के साथ भी गई तो शायद यूपीएससी मेरा थोड़ा वो हो जाएगा। लेकिन एक ये भी वो है कि अगर यूपीएससी ही लेकर हो गया तो फिर ये ना हो कि और भी एग्जाम फिर सब बोलेंगे कि बैकअप नहीं देखा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, कुछ समझ देखो नहीं आ रहा। तुम्हारा तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, दुनिया को मारो गोली, तुमको देना है यूपीएससी, ये क्लियर है ना? तुमको देना है ये तो ना? क्लियर है, हाँ लेकिन हाँ देना है। लेकिन सर एक वो डाउट आ गया था, क्योंकि देखिए ना मैंने अभी इतने सारे रेगुलेटरी एग्जाम्स दिए और उसमें मैं मेंस में बहुत कम मार्जिन से आउट हुई, एंड स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में कोई भी बात 2 नहीं, to क्या 3। हो गया? तो एक वो डर हो रहा है कि कहीं यूपीएससी ना हुआ तो फिर नहीं हुआ, देन व्हाट आई नहीं डू। हुआ तो क्या होगा, कोई बात नहीं, स्टेट पीएससी में जाओगे, फिर उसके बाद और एग्जाम आएंगे, दुनिया भर के एग्जाम आएंगे, उसमें जाओगी। नहीं हुआ तो तो क्या पेरेंट्स भी होगा? यही बोल रहे हैं हाँ जी, पेरेंट्स यही बोल रहे हैं कि यू शुड हैव बैकअप, बट दे आर वेरी सपोर्टिव। दे आर सेइंग कि इफ यू वांट टू गिव हाँ यूपीएससी यू शुड गो विद दैट, बट एटलीस्ट गिव ऑल अदर एग्जाम्स। दे डिडंट नो ना कि प्रोसीजर क्या है, बट हाँ अगर मैंने वो किया तो देन इट विल हैपन क्या जगल ना, कि ये भी वो भी। देखो देखो, लास्ट अटेम्प्ट है आजमी, मुझे जी बिल्कुल नहीं लगता कि तुमको कुछ भी और देना चाहिए। एक अटेम्प्ट ढंग से तसल्ली से हाँ यूपीएससी का जी दो। जिंदगी में ये जी मलाल नहीं चाहिए कि मैंने इधर भी टांग डाल दी, उधर भी टांग डाल दी, समय खराब हो गया। ठीक जी है? जी जी और जी इसकी तैयारी में कमी इसलिए रह गई क्योंकि इधर उधर पढ़ते रही। डोंट वरी जी अबाउट द रिजल्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं क्लियर होगा ना, कोई बात नहीं। तुम मन में ये तो नहीं रहेगा कि मैंने आखिरी अटेम्प्ट भी दुनिया की सुन के खराब कर लिया। हम्म, और पास हो गए तो भाई बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और पास का बेस्ट चांस जी कब है? जब अपना पूरा दोगी ना, पूरा एफर्ट डालोगी, राइट? जी सर, सही सिर्फ बात। 1 साल की जी बात जी है, आखिरी अटेम्प्ट है, आखिरी मौका है, ये बिल्कुल क्लियर है कि यूपीएससी देना है, तो फिर कोई दोहराया नहीं है। देना है। हाँ, फिर कोई जी दोहराया नहीं है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करो। और स्टेट पीएससी भी, मैं तो बोलूंगा स्टेट पीएससी में भी अभी मत जाओ, फिर देख लेना। वही था सर। हाँ छोड़ देना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, जिंदगी में मैं तो रिस्क लेने वाला आदमी हूँ, जी ठीक है? जी जी ये मत कहना कि आपने बोला था इसलिए मैंने कर लिया, ये डिसीजन तुम ही लोगी। पर मैं तुम्हारी जगह होता, मेरी छोटी बहन होती, तो मैं तो उसको यही बोलता, भाई यही करना है बस, बाकी देखी जाएगी। हाँ, क्योंकि बेस्ट तभी दे पाओगी ना। जी वही वही सर ना, क्योंकि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस ना अच्छे से। अभी आपसे जब मेरी पहले कॉल हुई थी, आपने बोला भी था कि ऑप्शनल अभी रेडी करो अच्छे से, वो उसमें भी यू आर लैकिंग समवेयर। हाँ, तो तो अभी मेरे को कॉल तो वो याद नहीं है, है बट कि मेन। हाँ बताया होगा कि अभी 3 महीने हैं, 3 महीने में ऑप्शनल ऐसे एथिक्स भी कर लोगी तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर दिसंबर तक जीएस 1 2 3, फिर प्रीलिम्स। तो हम्म, काम तो बहुत है करने के लिए। ठीक है सर। तो ठीक है सर ना? अभी ओरल एंड ईटी सर मेरे प्रीलिम आई मैं अपना ईमेल आईडी आपको सेंड कर दूंगी। तो फिर उसके वो मैं बाद शेयर आप कर एक दूंगा, बार मैं अपना जी पीटी का वो एनालाइज करूंगी। आई मैं वाज भेज दूंगा। गेटिंग 85 अराउंड, हम्म 85 अराउंड इन प्रीलिम मुझे आ हम्म रहे थे। तो हम्म। अभी भी मैंने जो देखा है कि शायद सोर्सेज में लैक हो रहा है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि किसमें जो हो रहा है? क्वेश्चन कोर्स में लैक हो रहा है। शायद मैं 11th 12th की एनसीईआरटी करी है, वो भी शायद मैंने रिवीजन में क्योंकि 2 ईयर मैंने गैप लिया तो वो रिवीजन नहीं हो पाया था। देखो, और मोटी वो मोटी दो क्वेश्चन तीन मैंने अटेम्प्ट चीजें, कर दिए जो जी मोटी मोटी 2 3 चीजें होती हैं जहाँ प्रॉब्लम होती है। एक होती है
PYQs पे ग्रिप कमजोर, हाँ, NCERT वो पे भी ग्रिप है कमजोर और एलिमिनेशन पे जी ग्रिप कमजोर। ये तीन ही बात जी होती है बस। पढ़ाई तो नहीं तो लगभग जी मेहनत तो सभी उतना ही करते हैं, और जी कोचिंग के मॉक्स नहीं देने हैं। कोचिंग के मॉक्स ज्यादा दिए हैं क्या तुमने? हाँ, दिए तो थे सर बहुत, हाँ, कोचिंग तो के मॉक भी दिए थे। इस साल मत देना, इस साल पहले PYQs कर लो, ठीक है? और अगर ET कोर्स ज्वाइन करोगे तो 4 मॉक्स तो मैं खुद बना के दूंगा, उसमें पार्ट होगा। बाकी फिर कोचिंग के कर लेना, मनाही नहीं है, लेकिन PYQs पहले ग्रिप लेके आओ। NCERT ठीक करो, है PYQs करो, देखो UPSC एक्सपेक्ट कितना कर रहा है, कितने नॉलेज एक्सपेक्ट जी कर रहा है ना तुमसे। फिर ठीक है कोचिंग का दोगी तो तुम बेहतर वैल्यू निकालोगे उससे। अभी मत डालो, अभी तुम्हारी ठीक है थिंकिंग को इसीलिए वो स्टेबल नहीं होने दे रहा है कोचिंग मॉक। जी सर, थोड़ा हाँ, सा सर मेंस का भी मुझे टाइमलाइन का एक बार बताइएगा आप। अभी तो आई एम डूइंग ऑप्शनल, तो अभी तो वो चल रहा है, बाद में अभी सितंबर तक, जब अभी ये मेंस आएगा इस साल का 24 का, जी सितंबर जी तक अपना ऑप्शनल एथिक्स एंड इफ पॉसिबल ऐसे 1 ऐसे पर वीक के हिसाब से लिखना है तुमको, ये तैयार करो। बाय तैयार आई मीन कम से कम 3 बार सारे PYQs इनके, ऑप्शनल के ठीक है और एथिक्स के तो जरूर, और ऐसे का जिस स्पीड से लिख सको, कम से कम हफ्ते का एक ऐसे तो लिखना है, ठीक है? ठीक है हाँ, ठीक है इनके PYQs 3 बार लिखो, कम से कम पिछले 10 सालों के। जी, ये तुमको खूब ठीक बिजी है रखेगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। 3 बार लिखने से अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर जब आएगा सितंबर में पेपर, तो वो पेपर लिखो हम्म, एज मॉक, ठीक है और फिर ठीक उसको है चेक करवाओ। यू शुड इन्वेस्ट इन हम्म, गुड आंसर इवैल्यूएशन सर्विस। आजकल मिलते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, खूब सारे देखे होते हैं होंगे, तो वहां पे कहीं हम्म, फ्री सैंपल भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो फ्री सैंपल भेज के देख लो। अगर कहीं पसंद आए, तुम्हारे हिसाब का सेटिस्फैक्टरी अगर तुमको लगे, तो इन्वेस्ट कर लो वहां पे। जो लिखो वो चेक करवाओ, मेन थिंग है जो लिखो प्रोफेशनली चेक करवाओ, खुद सिर्फ मत करते रहो। दूसरा, टॉपर आंसर कॉपी कंसिस्टेंट, रोज आधा घंटा टॉपर आंसर कॉपी के ऊपर समय बिताओ। ठीक है हाँ, ऑप्शनल की ठीक है देखो, एथिक्स की देखो, ऐसे की देखो, जो भी तैयारी कर रही हो, प्रिपेयर जो कर रही हो अभी सब्जेक्ट्स, उनकी देखो टॉपर आंसर का, और अलग अलग बैकग्राउंड के टॉपर्स की देखो। कोई इंजीनियर हो वो देख लो, कोई डॉक्टर हो, कोई लिटरेचर वाला हो, कोई कॉमर्स वाला हो, ग्रेजुएशन ना, सबका थिंकिंग पैटर्न अलग होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। और सेम जी सब्जेक्ट ठीक की है ढूंढने की कोशिश करो। ज्योग्राफी है तो सब ज्योग्राफी के अलग अलग फील्ड के लोगों की देखने की कोशिश करो, या ऑप्शनल है तुम्हारा जो भी है ऑप्शनल, उस ऑप्शनल में अलग अलग बैकग्राउंड के अगर मिल सके, ठीक है सर तो वैरायटी मिलेगी, फिर पता चलेगा कैसे लिखना है। अल्टीमेट मुद्दा है सब कुछ सिंपल रखना है एंड प्रैक्टिकल रखना है। डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू। दुनिया चाहे कुछ हो बोलती रहे, ये कर लो वो कर लो, जो तुम कर सकती हो बस उतना करो, जो नहीं कर सकती वो मत पढ़ो, वो बोझ ही बनेगा फिर। और सिर्फ सर वो उतना एक पढ़ो जो याद फोमो, रख सकते हो। हाँ, ये अभी तक जो प्री नहीं निकला सर, मुझे एक ये भी लगता है कि मैंने बहुत फोमो किया, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज की वजह से हाँ, आई वाज नॉट एबल टू रिवाइज एट द एंड, बस बस तो बस, वो उसमें टिपिकल है, टिपिकल है। और कोचिंग के कि मॉक्स ये नहीं लगाती रही। हुआ हम्म, जी, तो वही तो टिपिकल वो देखो, सब इसीलिए यूथ खराब हो रहा है इस देश का ना। कितना अच्छा, अच्छे लोग जो अच्छा कर सकते हैं, वो सिर्फ लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस की वजह से अब देखो इतना टाइम खराब हुआ। बट अब जो हो गया वो हो गया, हम्म, डोंट वरी अबाउट इट। अपना ढंग से करो, अभी थोड़े से दिन बचे हैं बस, इसके बाद तो आजाद हो फिर तुम, चाहे जैसे भी हो, फिर आजाद तो हो ही जाओगी। ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है कीप सर, इन टच। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके आजमी, गुड लक। एनीथिंग एल्स गाइस? दैट्स ऑल? ऑलराइट, thank you for joining me tonight. If there is any other issue you want me to take a mentorship session on, do message and we'll conduct it as soon as possible. Thank you for joining me tonight. Good night. All the best.